2026 সালের গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে পুণ্যার্থীদের যাতায়াত সুগম করতে বড়সড় ঘোষণা করল পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশন। প্রতি বছরের তুলনায় এবছরে রেলের পরিষেবায় ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে। আর শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিআরএম রাজীব কুমার সাক্সেনা প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে মেলার দিনগুলিতে ট্রেনের কর্মসূচি এবং বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা জানিয়েছেন। जो भी पॉइंट्स हैं स्टेशन से वहाँ पर स्पेशल डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। पिछले साल हमने 215 के अराउंड स्टाफ डिप्लॉय किए थे, इस बार में 400 थे। उसके अलावा भी जो लिमिटेड यात्री को हम बैठाएंगे और वो ट्रेन रवाना होगी, आवश्यकता से ज़्यादा भीड़ नहीं पड़ेगी। तो आप कैसे ये डिसाइड करेंगे कि ये बैठेंगे और ये नहीं बैठेंगे, किस तरह से लोग? वो तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे रहेगा, जैसे 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 अंदर जाते जाएंगे बैठेंगे। बाकी तो लोगों के ऊपर है, जो बुजुर्ग यात्री हैं उनको लोग, मुझे लगता है कि इतने लोग तो समझ होगी अपने आप ही उनको बैठने की जगह देंगे। यंग लोग होंगे वो खड़े होके जाएंगे, इतना हम लोगों से उम्मीद करते हैं, अपील भी करते रहेंगे। सर मेरे 2 सवाल हैं। ऐप वगैरह भी मैंने चालू किया जाएगा क्या, मतलब डिजिटली कुछ इस तरीके से? नहीं, ऐप का अभी अलग से कोई प्लान नहीं है, जो हमारा रेगुलर रहता है वो है। बाकी हम लोग इंफॉर्मेशन वगैरह हर तरीके से देने की कोशिश करेंगे, और जो हमारा सर्कुलेटिंग प्लान है कि कैसे साइनेजेस रहेंगे, क्या होगा, उसका भी अगर वीडियो बना करके हम सर्कुलेट कर देंगे, जिससे लोगों को आसानी हो जाए कि कैसे आप पहुंचेंगे, वहां पर पहुंच करके क्या क्या होगा वो हम लोग कर देंगे। अभी केवल 15 और 16, केवल 15 1 और 2 काकद्वीप का है। सियालदा में केवल प्लेटफॉर्म नंबर 15 और 16 ये केवल उसके लिए रिजर्व रहेंगे, यहाँ कहीं और की ट्रेन नहीं जाएगी, और यहाँ से केवल गंगा सागर की ट्रेन ही जाएगी। काकद्वीप जाने के लिए क्या एक ही सिंगल लाइन है? लखीकांतपुर के बाद सिंगल लाइन, यहाँ से लखीकांतपुर तो डबल लाइन है, तो मोस्टली पैसेंजर वहीं तक जाते हैं जो डेली कम्यूटर्स होते हैं। लखीकांतपुर से नामखाना सिंगल लाइन है, उसमें भी हमारा ब्लॉक स्टेशन है, बहुत लंबा लंबा 20 किलोमीटर का है। उसके बक्स प्लान किए हुए हैं, आगे आने वाले समय में जब छोटे ब्लॉक बनेंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगी, अभी तो नहीं है इस समय। सर और एक बात, पिछले साल आते हैं तो वहाँ भी पूजा करने के लिए जाना चाहेंगे, तो एडिशनल डिप्लॉयमेंट RPF का रहेगा। टाइम simultaneous reception will not be there, so I've already told about this. Exit will be from the regular Sialda south gate. The people who are coming out, even in this platform number 16 and 17, they are common platform, so we will separate it out. Platform number 17 crowd will not be mixed up with the platform number 16 crowd, so that Ganga Sagar will be totally a separate area other than the Sialda, other than the people going to other areas of Sialda division. And similarly at the Kaakdeep, we had made this platform number 1. All the trains going from Sialda towards the Kaakdeep, Namkhana, we will take at the platform number 1 only, and from there people will get down. And similarly, those who want to board after the Ganga Sagar trip to Sialda or Kolkata, they will have to go to the platform number 2. Exception, only one train that will terminate at Kaakdeep, that will be taken at platform number 2. Next one. So this is some general things that we all do. This is the repeated announcement of the 3 languages. Proper signages will be the key. We will make complete signages, and then we will make the complete recce of the area. And like the people who are coming from mainline section, suppose platform number 1 to 9, they want to go to Ganga Sagar, then they have to come out of the station and again go to the single entry only, and there will not be entry from inside the station only. So first come first serve, that will be maintained, and the holding area will be there. So no platform change, and rest I've already told you. Next. These are some other arrangements, standby arrangements for our asset management that we have taken. Some extra rakes, some extra light engine that we will make for beat out any contingency. If any failure takes place at the minimum possible time, that can be restored and traffic can be open. And this ambulances will be there at Kaakdeep, Sialda, and Scout Guides, St. John Ambulance. These are volunteers that we will deploy at the stations. Foot-over will be continuously monitored. Next one. This I have told about this Ganga Sagar Mela. One more thing that we want to tell you.
There is a strong demand from the Ranaghat Gede section people that we have not got any trains, and the timing gap will be is too large. So we have planned to introduce some of the trains in the gaps or in the peak hours, especially by extending some of the services. So the proper notification will come with timetable in near future. But similar, just I want to this is approximate timing around 9:30. We will be giving one train to Gede. Similarly, on the return, we want to give one train from 13 hours. So you can just read out the three main services we are planning, and one in the evening peak hour from Sialda around 5 p.m. To Gede. This is that we have planned, but the formal notification will come in due course and that will be intimated to you. So this is all I wanted to tell about this today's conference. सर हिंदी में बता उस पर भी निश्चित रूप से आप हम लोग तो सोच ही रहे हैं, आप भी जरूर सोच रहे होंगे कि क्या तीर्थ यात्रियों को उस आपके जो रेलवे के एरिया में है उस दौरान कुछ ऐसी दिक्कतें ना हो, तो क्या आप इस पर कुछ सोच रहे हैं? बांग्लादेश के हालात से इसमें तो कुछ कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। इस तो ये तो इंडिपेंडेंट रहेगा, बांग्लादेश के हालात से इसका कोई लेना देना नहीं है मिलेगा। बस केवल ये है कि जो कि इस बार में संख्या ज़्यादा होने की उम्मीद है, तो हमने डबल को लेकर प्लानिंग किया हुआ है। मान के चल रहे हैं कि अगर दुगनी क्राउड भी आ जाएगी, लेकिन एक ही जो आपको बताया कंस्ट्रेंट हमारा ये है कि हम जो बताएंगे ट्रेनें इससे ज़्यादा चला नहीं सकते, 1 घंटे से पहले ट्रेन हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए होल्डिंग एरिया ज़्यादा बना रहे हैं और पानी और टॉयलेट का इंतजाम कर दिया है कि वही लोग बैठें, अगर उसको जल्दी है तो फिर बाई सर रोड चले जाएँ वो। महिलाओं के लिए टॉयलेट की सुविधा हाँ वो रहेगी। जो स्टेशन होल्डिंग एरिया बनाए हैं वहाँ पे यूरिनल्स हमने बनाए हैं, बाकी WC वगैरह के लिए रेगुलर जो होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। यूरिनल्स हम होल्डिंग एरिया पे भी, काकद्वीप पे भी एक नया यूरिनल प्लेटफॉर्म एरिया में बनाया है जहाँ पर लोग पहले से वेट करेंगे। यहाँ भी सियालदा में भी एक टेम्परेरी हम लोग यूरिनल्स लगा रहे हैं जिससे कि उनको वेट ना करना पड़े। वेट करने में पानी और इसकी सुविधा हम रखेंगे क्योंकि वेट करना पड़ेगा लोगों को। टिकट बुकिंग के लिए MUTS जो होते हैं, मोबाइल UTS, वो रहेंगे और वॉलंटियर्स भी रहेंगे जो उन लोगों को भीड़ के बीच में ही देंगे। अलग ही होगा, ये दोनों एंट्री ही अलग है हमारी। रेगुलर काउंटर पे तो आना ही नहीं है आपको ना। आपको जैसे बताया प्लेटफॉर्म नंबर 15-16 के बाहर, ये मेट्रो के गेट के बाहर एक वॉल है, वहाँ से गेट से एंट्री होगी, तो वहाँ पे रहेगी। वहाँ तो कोई बुकिंग काउंटर है ही नहीं। तो नामखाना काकद्वीप जाने वालों के लिए, गंगा सागर मेला के लिए तो अलग से ही सेपरेट व्यवस्था होगी। वो नॉर्मल बुकिंग काउंटर पे आएंगे ही नहीं लोग। वैसे काकद्वीप में भी जो उधर से आने वाले लोग हैं वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 की साइड से आएंगे, वहाँ भी कोई बुकिंग काउंटर आज की डेट में नहीं है। वो सब टेम्परेरी अरेंजमेंट होगा और नंबर ऑफ काउंटर्स रहेंगी, मतलब कोई समस्या आएगी ही नहीं। इसको ध्यान रखते ही किया गया है। Every year, so from 10th to 16th, Ganga Sagar Mela will be there. स्काउट एंड गाइड, GRP और उनका इसमें डिप्लॉयमेंट हुआ है। ऑफिसर्स भी रहेंगे जो आपके दक्षिणेश्वर। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा 2 सवाल है। जैसे कि पहला तो सवाल ये है, जैसे कि आपने अभी बोला और सभी लोग ये बोल रहे थे इस बार ज़्यादा लोग आएंगे गंगा सागर मेला के लिए, तो जैसे कि ऑफिस टाइम में जब ये चढ़ेंगे ट्रेन पे और दूसरे सारे जो नॉर्मल पैसेंजर्स हैं, रेगुलर पैसेंजर्स, वो जब चढ़ेंगे तो दोनों में धक्का मुक्की होने का कोई संभावना हो सकता है, तो इसके ऊपर आप लोगों का क्या सोच है? ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा ये सवाल है, जैसे कि आपने अभी बोला है कि हम लोग अपना जो सिक्योरिटी स्टाफ जो है वो बढ़ाएंगे, लेकिन काफ़ी टाइम ये देखा गया है कि उन लोगों का वो लोग जैसे समझाने की कोशिश करते हैं और साधारण पैसेंजर जैसे उन लोगों के साथ उनका व्यवहार के ऊपर काफ़ी सारा प्रॉब्लम आ जाता है। वो जैसे समझाने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, साधारण लोग जो है वो समझते नहीं उसमें और उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये दोनों चीज़ के ऊपर आप लोगों का क्या सोच है? आपने बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा है कि जो रेगुलर ऑफिस गोअर्स हैं उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो हमारी क्राउड इस सेक्शन, बाकी सेक्शन तो अनअफेक्टेड हैं। इसीलिए पहले क्या होता था कि सभी लोगों की एंट्री एक ही जगह से थी, सियालदा साउथ। अभी हमने बिल्कुल एंट्री सेपरेट कर दी है, तो एटलीस्ट जो बाकी सेक्शंस में जाने वाले हैं, कैनिंग, डायमंड हार्बर या बजबज के लिए,
उनको आराम से जा सकते हैं। उनके प्लेटफॉर्म भी अलग हैं, उनकी साउथ सेक्शन से एंट्री आराम से होती रहेगी, उनको किसी तरीके का कष्ट नहीं होगा। और जो नामखाना साइड में जाने वाले हैं तो मोस्टली आप देखेंगे कि 80 to 90% लोग लकी कांतापुर तक ही जाते हैं। तो वहाँ की जो सर्विस हैं जो हमारी वहीं टर्मिनेट होती है वो चलती रहेंगी, वो अपनी रेगुलर बेसिस में चलेंगी, वो दूसरे प्लेटफॉर्म से जाएंगी, वहाँ से लोग जाते रहेंगे। ये केवल जो ट्रेनें हमारी नामखाना और काकद्वीप जाएंगी वो हम प्लेटफॉर्म नंबर 15-16 से रखेंगे। उसमें हो सकता है कुछ लोग हों, थोड़े से लोग होंगे, वो उनको जैसा बताया गया है कि होल्डिंग एरिया में रहेंगे और कैपेसिटी कंस्ट्रेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। 5-6 दिन के लिए उनको थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा। और दूसरा आपने जो प्रश्न किया था कि सिक्योरिटी स्टाफ का, तो उसमें भी काफ़ी एलोवेट एक्सरसाइज की है हमारे लोगों ने। सीनियर डीएससी हमारे हैं, इन्होंने भी स्टाफ को गाइड किया है, कॉमर्शियल स्टाफ को भी गाइड किया है कि लोगों को प्रॉपरली गाइड करें। और जो हमने अभी इसीलिए आपको इसीलिए बुलाया है कि आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि चीज़ों को हमने एक सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। कोई डिस्कशन नहीं रखा है, सबके प्लेटफॉर्म फिक्स कर दिए हैं, साइनेजेस लगा देंगे तो वैसे ही कन्फ्यूजन कम हो जाएगा। और बाकी जो स्टाफ का बिहेवियर ट्रेनिंग है वो ये लोग करेंगे, जिससे कि उनको समझाया जाएगा। और सबसे आपके माध्यम से भी अपील करेंगे कि पेशेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है। मैक्सिमम आप देखेंगे हम 23 ट्रेन चला रहे हैं, आप 2 से 2,500 लोग मान लीजिए, तो भी 50-60 हज़ार से ज़्यादा लोग हम नहीं लेके जा सकते हैं। तो रेस्ट ऑल के लिए आप स्टेट गवर्नमेंट से भी बोल सकते हैं कि बाई रोड अरेंजमेंट करें। और हमको अगर डिले होगा तो हम उनके लिए व्यवस्था हम कर रहे हैं, बैठने के लिए आराम से बैठें, वेट करें। पर ऐसा नहीं संभव है कि उनके लिए तुरंत ट्रेन चल जाए, क्योंकि सिंगल लाइन के सेक्शन में जो कंस्ट्रेंट है वो है 1 घंटे के बाद ही उनको ट्रेन मिलेगी, दूसरी से पहले दूसरी ट्रेन मिलने का कोई चांस नहीं है। थोड़ा सा दिक्कत ये आएगी कि अगर इस तरीके से करेंगे तो हमारा पूरा एरिया ही ब्लॉक हो जाएगा। वो जैसे जैसे व्यवस्था होगी उसके हिसाब से किया जाएगा। अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो हम नहीं अलाउ कर पाएंगे उसमें। जैसे प्लेटफॉर्म पे पहले होता था कि लोग उतर के उसी प्लेटफॉर्म बैठ गए, इसीलिए इस बार हमने जो अरेंजमेंट किया है कि जो ट्रेन आके उतरेगी सियालदह में, पूरी ट्रेन को खाली किया जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 15-16 प्लेटफॉर्म पूरा खाली करने के बाद ही दूसरे लोगों को चढ़ने की परमिशन दी जाएगी। और उनको रेस्ट करना है तो बहुत सारे एरियाज हैं, वेटिंग एरियाज हैं, बाहर एरियाज, वहाँ जाएँ। एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भीड़ है उसमें क्राउडिंग ना करें, वो हम लोगों से अपील भी करेंगे। नहीं, अभी तो जैसे आपने बता दिया ना कि होल्डिंग एरिया में हम लोग एंट्री ही देंगे, तो उसी समय जाने से पहले चेक कर लेंगे। अब तो आसान हो गया ना, पहले मल्टीपल एंट्रीज थी, अब तो एंट्री एक कर दी। वो देखा जाएगा, हाँ वो देखा जाएगा, वो देख लिया जाएगा। आरपीएफ हम सफिशिएंट नंबर में रख रहे हैं, पिछली बार की तुलना में लगभग दुगना रहेगा। आप कुछ नंबर हो तो बता दीजिएगा। 400 स्टाफ डिप्लॉय कर रहे हैं, पिछली बार हमने लगभग 220 का लास्ट स्टाफ डिप्लॉय किया था। ये एडिशनल स्टाफ रहेंगे और मतलब अदर जगहों पर जो ड्यूटी किया जाता है वो रहेंगी आगे 400 स्टाफ। लेकिन कोई जैसे बीमार हो गया अचानक में, उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? एम्बुलेंस वगैरह बताया ना, एम्बुलेंस तो रहेगी उनके लिए, जैसे नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे। नियरेस्ट हॉस्पिटल, हाँ, जो पहुंचाया जाएगा। बाकी स्टेट गवर्नमेंट ने, हमारी रेलवे में तो व्यवस्था रहती है, हर स्टेशन के ऊपर लिखा ही होता है कि नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है, और फ़ोन नंबर भी लिखे रहते हैं। वहाँ से हमारा स्टाफ इमीडिएटली कॉल करता है, रूटीन में भी करता है। इसमें मेला में थोड़ा स्पेशल रूप में अलर्ट रहेंगे, वो लोग करेंगे मेडिकल में। नामखाना तक मगर उधर हम देखें कि जो लोग आ रहा है वो सब नीचे बैठ जा रहा है, वो ट्रेन के कमरे के नीचे बैठ जा रहा है। और जो हम लोगों का रेगुलर पैसेंजर है उनके साथ लड़ाई भी शुरू हो जाता है। तो ये क्या कंट्रोल करने के लिए कुछ क्या लोगों ने सोचा कि? हाँ सर, ये चीज़ें बहुत ये रहेगी। रेगुलर पैसेंजर्स हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कम ही करेंगे, हालांकि 1 या 2 दिन में दिक्कत आएगी जो पीक टाइम होगा। रेगुलर पैसेंजर लकी सियालदह से नहीं होता है, ये आफ्टर बालीगंज से जो लोग उठते हैं ना ट्रेन में, उधर सब लोग शुरू हो जाता है। नहीं, उनसे हम अपील यही करेंगे कि जो लोग जाने वाले हैं वो इन ट्रेनों में ना जा करके जो लकी कांतपुर तक की जो ट्रेनें जाती हैं उनको इस्तेमाल करें इस पीरियड में। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको पता होगा कि बाबू घाट में भी एक छोटा सा मेला वहाँ भी आयोजन होता है और वहाँ से लोग स्टे करते हैं, वहाँ से फिर अपना यात्रा शुरू करते हैं।
वहाँ भी लाखों की संख्या में तीर्थयात्री आते हैं और पास स्टेशन है आपका ईडन गार्डन, बीबीडी बाग और ये सब है। वहाँ से भी बहुत सारे यात्री ट्रेन पकड़ के गंगा सागर की यात्रा शुरू करते हैं। वहाँ स्पेस भी कम है और लोग रोड तक आ जाते हैं, बसें वहाँ बस स्टैंड भी है। तो मेरा ये कहना है, क्या आप उस स्टेशन के पास भी होल्डिंग एरिया बनाएंगे? नहीं, वहाँ पर होल्डिंग एरिया है कि हमारी ट्रेन केवल 3 ही ट्रेन हम कोलकाता टर्मिनल से चलेंगी जो उन स्टेशन पे आएंगी, केवल 3 ट्रेन हैं, तो हमारी तो कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। होल्डिंग एरिया बनाएंगे हम रेलवे पैसेंजर्स के लिए, वहाँ पर जो लोग आएंगे वो बाई रोड जाना चाहेंगे, वो करना चाहेंगे, तो वो हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो वहाँ पे कैसे मैनेज करेंगे। अपना स्टेशन का एरिया जरूर मैनेज करेंगे, वहाँ पे जो लोग होंगे वो बैठेंगे। सर दूसरा प्रश्न मेरा लोग आते हैं, भाषा की एक प्रॉब्लम रहती है, तो सियालदह मंडल के जो स्टेशन है, खासकर सियालदह स्टेशन पे मेडिकल के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी रेलवे के तरफ से? पहला सवाल है। वो हमने पूरी व्यवस्था की हुई है, आपको बताना से भूल गए थे हम कि ये सभी स्टेशनों पे मेडिकल का पूरा बूथ रहेगा, फर्स्ट एड से लेकर के सारी व्यवस्थाएं रहेंगी, और होल्डिंग एरिया वगैरह में भी आपको जरूरत पड़ती है तो वी विल प्रोवाइड द नेसेसरी। 2 ही जगह को फोकस कर रहे हैं हम लोग, आपका सियालदह और काकद्वीप, जहाँ पर मैक्सिमम क्राउड आने वाली है। सियालदह में हमारी एम्बुलेंस रेगुलर रहती ही है और काकद्वीप में एम्बुलेंस रहेगी। कितनी संख्या है एम्बुलेंस की? एक ही रहेगी, अभी से बाकी जरूरत पड़ने पर बुला ली जाएंगी। और हेल्प डेस्क कितने हैं यहाँ, अगर बच्चे बिछड़ जाएं, बुजुर्ग बिछड़ जाएं उसके लिए? हाँ, हेल्प डेस्क रहेगा, मे आई हेल्प यू वाला बूथ रहेगा। कोई अलग से व्यवस्था हुई है या जो पहले से है उतना है? अलग से बूथ बनाया जाएगा वो तो। और स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी इलाबोरेट अरेंजमेंट कर रही है, काकद्वीप में तो काफ़ी अच्छा उन्होंने अरेंजमेंट कर रहे हैं, और हमारे लोग लगातार स्टेट गवर्नमेंट से टच में रहेंगे, उसके साथ हम लोग मिलकर करेंगे। We have gathered about telling you about the preparations of railways towards Ganga Sagar Mela. As you all know that Ganga Sagar Mela is happening every year in the Sagar Island from 10th to 16th of January. So as we gather from the news report, this year's Ganga Sagar Mela will be on a much larger scale. So accordingly we have prepared something and we have made some plans that I will like to share with all of you. So as you all know that this is the map from Sialda or Kolkata terminal stations. There is a railway line going up to Namkhana. So Kaakdeep and Namkhana are likely to be 2 major stations from where people will go to, all the pilgrims will go to Ganga Sagar. So most of the crowd is expected from Kaakdeep, and Namkhana also will have sufficient crowd. Next one. So this is the slide. There is some data that we are showing. What is the difference between the preparations as compared to other years? So in the last year, in the previous years, number of trains that we have run in all days were 72. This year's special trains will be 126. Number of days we have increased from 6 to 7. In the 7 days, the special trains will run. On an average, you can see that there is an increase of 50%. Last year we have run around 12 special trains. This year 18. So this is the 50% increase in number of trains. Next one. So you see, this is the complete chart. The special trains are shown as highlighted, and the regular trains are also there. So there will be 23 trains going towards Namkhana from this Sialda or Kolkata. There will be 3 number of trains that will originate from Kolkata terminal station, and 1 regular train from Sonarpur is already there. The rest of all train will go from Sialda South station. Next one. So from the similarly on the return side, if you see that 23 services will run, including 10 special trains. 23 are the regular, except 1 train from Kaakdeep. All trains will start from Namkhana, and I think almost all the trains are coming to Sialda. On the return, there is no train to Kolkata terminal. So at Baliganj, people can change the local trains, urban trains to Kolkata terminal, those who are coming from out stations. And if you see that, this is some of the highlights. This is the maximum possible number of trains that we can introduce. As you all know that Lakshmi-Kantapur and Namkhana, there is a single line. There is a capacity constraint. We cannot increase more trains. We have worked out meticulously, unlike other mainline sections where we have the
flexibility of adding more trains here because of single line section and capacity constraint. So almost one train per hour you can see that we will be running. There will be the galloping trains means the special train will not have stoppages at all the stations. Regular train will run as it is. The special trains will stop all these important stations like Baliganj, Sonarpur, Badaipur, etc. हर साल होता है 10 से 14 जनवरी के बीच में। तो इस वर्ष भी पिछले वर्षों की तुलना में हम जो न्यूज़ पेपर से पढ़ रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी है कि इस बार भीड़ कुछ ज़्यादा होने की उम्मीद है, उसके हिसाब से हम लोगों ने प्लानिंग किया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन्स, मैक्सिमम फैसिलिटी दैट वी कैन क्रिएट फॉर द पीपल। सो इसको हम आपको एलोबरेट करते हैं। काकद्वीप और नामखाना हमारे 2 मेजर स्टेशन होंगे जहाँ पर ट्रेनें, जहाँ से लोग उतर करके ट्रेन से और मेला क्षेत्र में जाना चाहेंगे। तो काकद्वीप में मैक्सिमम प्रेशर होगा, नामखाना में थोड़ा कम होगा। इसी के हिसाब से हमने क्राउड रेगुलेशन प्लान बनाया है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेक्शन है सियालदा से नामखाना का, उसमें लकी कांतापुर से सियालदा सिंगल लाइन सेक्शन है जो हमारे लिए कैपेसिटी कंस्ट्रेंट का काम करता है। तो बहुत जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रेन्स थी वो हमने बनाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि टोटल 18 ट्रेन्स अप एंड डाउन मिला लीजिए वो एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन रन की है, जो पिछली बार की तुलना में 12 की तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा है। वो 50% का इंक्रीज हमने किया है और 6 दिन की जगह 7 दिन हमने सर्विसेज को रखा है। इसी तरीके से आप और भी आंकड़े देखना चाहेंगे तो 72 की जगह 126 ट्रेन हैं और ये ट्रेन का कंप्लीट डिटेल्स है। रेगुलर ट्रेन मिला लीजिए और जो आपकी स्पेशल ट्रेन हैं 23 नंबर्स अप ट्रेन होंगी, 23 नंबर डाउन ट्रेन होंगी। यहाँ से जाने के लिए 3 ट्रेनें कोलकाता टर्मिनल से अवेलेबल होंगी। ये उम्मीद करते हैं कि काफ़ी पैसेंजर्स हमारे पिलग्रिम्स जो हैं, तीर्थयात्री आएंगे, वो दूर स्टेशनों से भी आ सकते हैं। जहाँ कोलकाता टर्मिनल पर पहुँचेंगे वहाँ से भी उनको सर्विसेज मिल सके और बाकी ट्रेनें तो सियालदा से रहेंगी। सिमिलरली वापसी में भी सभी ट्रेनें नामखाना से चलेंगी मोस्टली और सियालदा में आएंगी। तो जैसा कि आपने देखा इसमें जो जितना मैक्सिमम हमने आपको एम्फसाइज़ किया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन हमने डालने की कोशिश की है। और जो स्पेशल ट्रेन होंगी वो सभी जगह रुकेंगी नहीं, केवल इम्पोर्टेंट स्टेशन पे रुकेंगी। इनमें नाम हमने दिए हैं आपको, बालीगंज, सोनारपुर, बरईपुर, लखीकांतापुर, निश्चिंतपुर और बाकी काकद्वीप और नामखाना तो जाएंगी। और मेला क्षेत्र में जाने के लिए जो ट्रेन है कोलकाता टर्मिनल से, वो कोलकाता टर्मिनल और माधेघाट के बीच में सभी जगह रुकेंगी। इस बार का जो स्पेशल फीचर है, एक तो हमने 50% कैपेसिटी इंक्रीज की थी एंड दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो डिसीजन लिया गया है कि किसी भी हालत में जो आने वाले पैसेंजर हैं और जाने वाले पैसेंजर हैं उनकी मिक्सिंग किसी भी तरीके से नहीं होगी और किसी भी ट्रेन में जो उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोगों को हम मैक्सिमम कैपेसिटी से ज़्यादा लोगों को नहीं अलाउ करेंगे, जिससे कि लोग लटक करके यात्रा करें और कोई गलती से हादसा हो जाए तो दुर्घटना को नहीं हम इनवाइट करना चाहेंगे। हम चाहेंगे लोगों को आपके माध्यम से जब भी करेंगे उनको बताएं कि पेशेंस रखें। हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, 1-2 घंटा उनको वेट करना पड़े और फिर वो जाएं। इसीलिए हमने होल्डिंग एरियाज़ का प्लान किया है सियालदा और काकद्वीप में। उनको होल्डिंग एरिया में हमने टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था भी की है, टेम्परेरी टॉयलेट्स भी बनाए गए हैं, जिससे कि वो लोग जब तक वेट कर रहे हैं वो अपना पानी और इसकी व्यवस्था रहे, बैठने की व्यवस्था होगी और जितनी हमारी ट्रेन की कैपेसिटी होगी अगली आने वाली, उससे पहले उतने ही लोगों को प्लेटफॉर्म में एंट्री दी जाएगी जाने के लिए, जिससे ओवर क्राउडिंग ना रहे। और हमने होल्डिंग एरिया भी एक से ज़्यादा भी रखे हैं, ज़्यादा क्राउड होगी तो दूसरा होल्डिंग एरिया इस्तेमाल करेंगे और हर हालत में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसको पहले जाने दिया जाएगा। बस इस बारे में अनाउंसमेंट लगातार होते रहेंगे। प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल फिक्स कर दिए गए हैं, केवल प्लेटफॉर्म नंबर 15 और 16 सियालदा का है, उसी से ट्रेनें काकद्वीप और नामखाना के लिए जाएंगी और एक समय में एक ही ट्रेन आएगी। और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे एक स्पेशल एंट्री बनाई गई है जो बिल्कुल अलग से होगी। सियालदा स्टेशन में भी जो लोग सियालदा स्टेशन पे किसी और प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं कहीं और से भी, उनको भी अगर